हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 20 दिसंबर और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। देन हम देखेंगे हाल ही में चर्चा में रही ब्लैक सी के बारे में। इसके साथ ही हम देखेंगे प्रोजेक्ट उन्नति के बारे में। देन डेथ वैली नेशनल पार्क, ये यूएसए का है, काफी चर्चा में रहा है, हम इसके बारे में देखेंगे। इसके साथ ही हम देखेंगे सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवांसेस रीएड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम के बारे में। देन आर्टेमिसिनिन, ये एक टर्म है, काफी चर्चा में रहा है, इसके बारे में जानेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे माविन मिशन के बारे में। शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, with reference to the International Maritime Organization, consider the following statements. तो यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द IMO was established by a convention adopted under the auspices of the United Nations. And second, its headquarters are located in Geneva, Switzerland. Third, one of its major functions is to oversee global norms on seafarer training and certification through conventions like STCW. यहाँ पर आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि इनकरेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर केवल एक ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और वो है सेकंड स्टेटमेंट, जबकि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। आप देख सकते हैं, द IMO was established by a convention adopted under the auspices of the United Nations in 1948. However, the convention did not come into force until 1958 and the first session was held in 1959. आपने देखा कि यहाँ स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ये इनकरेक्ट है, इसका हेडक्वार्टर है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। So this organization is responsible for the safety and security of shipping and the prevention of marine and atmospheric pollution by ships. So, a key function is overseeing global norms on seafarer training, certification, and watchkeeping, primarily through the STCW Convention, जो कि है International Convention on Standards of Training, Certification, and Watchkeeping for Seafarers. अभी हाल ही में ये चर्चा में रहा इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इसकी काउंसिल में भारत को पुनः चुना गया है 2026 से 2027 तक के लिए। और भारत को IMO की जो काउंसिल बी कैटेगरी है उसमें चुना गया है, जिसमें कुल 10 देश शामिल हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following statements regarding the Black Sea environmental characteristics are correct? यहाँ पर जो काला सागर है उसकी पर्यावरणीय विशेषताओं से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं और आपको यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट्स बताने हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, it receives water from major rivers such as Danube, which contributes to the stability of its upper layer. And second, the sea supports no life forms below 200 meters due to the presence of hydrogen sulfide. And third, it is a geologically young sea formed by the melting of glaciers after the last ice age. यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं।
आपको बताना है ब्लैक सी से संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट है, जबकि थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। आप देख सकते हैं Black Sea receives large inputs of fresh water from major rivers like the Danube, Dnieper, and Don, and this inflow creates a layer of less saline, oxygenated water on top, which floats on the denser, saltier water from the Mediterranean, causing stratification. So, below a depth of about 150 to 200 meters, the water is anoxic and it contains high concentration of hydrogen sulfide. Consequently, it supports no multicellular life forms in these deep layers, only anaerobic bacteria exists there. So the Black Sea is a remnant of the ancient Thetis Sea which existed millions of the years ago. While its water level have fluctuated with the glacial cycles, it is not simply a young sea formed by melting glaciers, but a geological basin which is much older tectonic history transformed over millions of the years. सो आपने देखा कि ये जो ब्लैक सी है ये एक लार्ज इनलैंड सी है जो कि सिचुएटेड है साउथ ईस्टर्न एक्सट्रीमिटी ऑफ यूरोप में। ये ओवल शेप्ड वाटर बॉडी है और इसकी जो सरफेस एरिया है वो है अराउंड 4,36,000 स्क्वायर किलोमीटर। बॉर्डरिंग कंट्रीज की बात करें तो टर्की साउथ में है, देन बुल्गारिया एंड रोमानिया टू द वेस्ट, यूक्रेन टू द नॉर्थ, रशिया टू द नॉर्थ ईस्ट एंड जॉर्जिया टू द ईस्ट। ब्लैक सी से संबंधित जो लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है वो है रशिया की और ये है 2300 किलोमीटर। इसके बाद है टर्की 1329 किलोमीटर, देन यूक्रेन 1282 किलोमीटर। ब्लैक सी जो है ये कनेक्ट करता है टू द एजियन सी वाया द वास्पोरस स्ट्रेट एंड द सी ऑफ मरमरा एंड द डार्डेनल्स स्ट्रेट। आपने देखा कि मेजर रिवर्स जो इसमें फ्लो करती हैं वो हैं डेन्यूब, नीपर और नीस्टर। इसके अलावा डॉन जो रिवर है वो भी इसमें फ्लो करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Regarding the project Unnati mentioned in the context of Manrega, consider the following statements. So यहाँ पर जो मनरेगा स्कीम है उसके संदर्भ में उल्लिखित परियोजना है उन्नति, उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट वाज लॉन्च्ड इन 2025 टू स्किल मनरेगा वर्कर्स। सेकंड, it aims to upgrade the skill base of the workers to move them from unskilled to semi-skilled or skilled work. And third, the project has already surpassed its training target of the workers as of March 2025. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे गए हैं। आपको बताना है प्रोजेक्ट उन्नति जो कि मनरेगा से संबंधित है उससे संबंधित यहां पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहाँ पर केवल एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है और वो है सेकंड स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट उन्नति है इसको लॉन्च किया गया 2019 में। देन थर्ड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है बिकॉज द प्रोजेक्ट हैज फॉलन शॉर्ट ऑफ इट्स टारगेट। आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं।
Project Unnati was launched in 2019, not 2025, and it is an existing initiative aimed at skill upgradation. So इसका जो कोर ऑब्जेक्टिव है वो है जो स्किल है मनरेगा वर्कर्स का उसको अपग्रेड करना एंड इट इंटेंड्स टू ट्रेन मनरेगा वर्कर्स स्पेसिफिकली दोज फ्रॉम हाउस होल्ड कंप्लीटिंग 100 days ऑफ वर्क टू इम्प्रूव देयर livelihoods by moving them from unskilled manual labor to skilled or semi-skilled employment. So the project has fallen short of its targets. While the target was 2 lakh workers, only 90,894 had been trained till March 2025. So it has not surpassed the target. अभी हाल ही में ये चर्चा में रही क्योंकि जो एमजी नरेगा स्कीम है उसको यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है, रीनेम किया है, और अब इसका नया नाम है पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। इसके साथ ही विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन जो है ये अब नया नाम होगा मनरेगा का। मतलब ये स्कीम रिप्लेस करेगी मनरेगा स्कीम को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Death Valley National Park that was recently seen in the news is located in which country? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है जो डेथ वैली नेशनल पार्क है हाल ही में खबरों में रहा है ये किस देश में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, स्पेन या फिर जर्मनी। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो डेथ वैली नेशनल पार्क जो है ये स्थित है यूनाइटेड स्टेट्स में। आप देख सकते हैं। So, after record-breaking rains, an ancient lake in Death Valley National Park, previously vanished, has reappeared. So, Death Valley National Park जो है ये स्थित है साउथ ईस्टर्न कैलिफोर्निया में and it is the hottest and driest place in North America. So, it holds the record for the highest temperature ever recorded in the United States. And it is the largest national park in the continental US. So the valley is a rift valley formed by the sinking of rock between major block faulted mountains running parallel in the east and west. आप ध्यान रखेंगे हाल ही में चर्चा में रहा जो डेथ वैली नेशनल पार्क है ये है यूनाइटेड स्टेट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Centralized public grievances readdressal and monitoring system is developed and monitored by which organization? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली का विकास और निगरानी किस संस्था के द्वारा किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, सेकंड नीति आयोग, थर्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। यहां पर आपसे केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली जो है इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है। आपको बताना है कि कौन सी संगठन या कौन सी संस्था है जो इसका विकास और निगरानी करती है। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये करता है DARPG जिसे डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं। So India's centralized public grievances readdressal and monitoring system has reduced pending public grievances by 74% since 2021. So इस वजह से ये अभी हाल ही में चर्चा में रहा है।
So this system is a 24 into 7 online platform for citizens to file service delivery complaints. It is developed and monitored by the Department of Administrative Reforms and Public Grievances under the Ministry of Personal Public Grievances and Pension. So आप ध्यान रखेंगे ये जो मॉनिटरिंग सिस्टम है ये वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन. So it works as a single portal connected to all union and state government ministries and departments. So citizen can access it through the website, a mobile app and the unified mobile application for new age governance. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. What is artemisinin that was recently mentioned in the news? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा ये जो टर्म है आर्टेमिसिनिन, इसका अर्थ क्या है? आपके ऑप्शंस हैं इन्वेसिव बीड, एंटी मलेरियल ड्रग, न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज ऑफ स्पाइडर या फिर अ पेस्टिसाइड यूज्ड इन क्रॉप प्रोटेक्शन. यहाँ पर आपको बताना है कि हाल ही में चर्चा में रहा जो ये आर्टेमिसिनिन है ये इनमें से किससे संबंधित है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. सो ये एक एंटी मलेरियल ड्रग है. A new study warns that heavy use of artemisinin and favorable conditions can create new hotspots of drug resistance, with resistance markers slowly rising in parts of Africa. So artemisinin जो है, it is an anti-malarial drug obtained from the sweet wormwood plant called Artemisia onua. So इसको डिस्कवर किया गया था 1970s में and became a major breakthrough when malaria parasites developed resistance to older drugs like chloroquine. So it is effective against all malaria causing parasites of the Plasmodium genus, mainly during the blood stage. So artemisinin quickly reduces parasites but stays in the body for a short time, so it is combined with the other drugs. The World Health Organization recommends artemisinin-based combination therapies as the standard treatment for Plasmodium falciparum malaria. So आप ध्यान रखेंगे हाल ही में चर्चा में रहा ये जो आर्टेमिसिनिन टर्म है ये एक एंटी मलेरियल ड्रग है. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. द मार्स एटमॉस्फेयर एंड वॉलेटाइल इवोल्यूशन मिशन, जिसे माविन मिशन के नाम से जाना जाता है, इज अ प्रोजेक्ट ऑफ विच स्पेस एजेंसी? तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि मंगल ग्रह के वायुमंडल और वाष्पशील विकास मिशन जो है, जो कि हाल ही में चर्चा में रहा है, यह किस अंतरिक्ष एजेंसी की परियोजना है? आपके ऑप्शंस हैं नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिन्हें हम नासा के नाम से जानते हैं. सेकंड, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. थर्ड, यूरोपियन स्पेस एजेंसी या फिर जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी. आपको बताना है हाल ही में चर्चा में रहा ये जो माविन मिशन है ये किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए. सो ये मिशन है नासा का. आप देख सकते हैं. सो नासा हैज लॉस्ट कॉन्टेक्ट विद इट्स माविन स्पेसक्राफ्ट व्हिच हैज बीन ऑर्बिटिंग मार्स सिंस 2014. So Marvin stopped communicating after it went behind Mars and NASA received only silence when it reappeared.
सो ये जो स्पेस क्राफ्ट है इसको लॉन्च किया गया था 2013 में एज द फर्स्ट मिशन डेडिकेटेड टू स्टडिंग द मार्शियन अपर एटमॉस्फेयर एंड इट्स इंटरेक्शन विद द सोलर विंड। सो माविन जो है, आप ध्यान रखेंगे कि ये मिशन मार्स से संबंधित है और ये अमेरिका का मिशन है। So Marvin helped so that the sun stripped Mars of its atmosphere over time and also served as a relay for Curiosity and Perseverance rovers. NASA is currently conducting engineering investigations while its other orbiters, Mars Reconnaissance Orbiter and Mars Odyssey, remain operational. तो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।